So it was 2024, my year of growth. This year was purely a roller coaster, physically, emotionally, and financially. But I turned challenges into opportunities. In this specific video, I'm gonna tell you how I did all of that. So let's get started. It was me in Jan Feb, and this is me in December 24. So as I told you, I gained a lot of weight when I came back from Mumbai. So I had to choose between bulking or cutting. But as you know, I am someone who wants muscle mass with less fat percentage. So I did body recomposition. Not exactly that, but yeah, it was similar to that. I stick to a plan. So I did chest and biceps, shoulders and triceps, then back and then legs and off, and then repeat. Forearms, traps, calves, they are all included here. And my coach, my trainer, my brother Ritraj helped me making these splits. So I was having 4 meals a day. So it's been 6 years now since I'm having the same breakfast, which is oatmeal, fruits in it, a big cup of black coffee, 4-5 egg whites. So this is the breakfast I'm having for the last 4-5 years. Then I used to have my lunch, which was chawal, sabji, any sort of protein in it, and yogurt. Then I used to have my evening meal, any kind of snacky stuff, something similar to tandoori chicken kind of thing. Then I used to have my dinner. Again, a little bit of carbs, rice, sabji, and any kind of meat in it. I made sure that it has got protein, But in between this gym thing, I did freelancing full time. I am doing full time freelancing since December 2023. So it was very hard for me to balance gym, a good diet, and my freelancing work because paisa to sabko chahiye bhai. I maintained a decent balance between gym and my work and gain some muscles, as you can see. So I was in between 76, 74 ke aspas, and abhi I am 73, but with less body fat percentage. So there was a phase in this year where I felt mental burnout or creative burnout, where I felt कि सब कुछ अच्छा नहीं है. But as I believe, our life is a test match and we can bounce back anytime we want and anywhere we want. After all this, I started doing my freelancing again and was able to gather some good clients for me. So I went to Manali for 14 days just to get rid of the burnout, the creative blockage, As a person, I love to be surrounded by mountains, greenery. I love my me time. It helped me to get rid of the creative blockage. I shot some videos, shot some reels for my Instagram. I didn't go there just to create content, but to find myself again and overcome the mental breakdown. But yeah, it helped me a lot. Okay, let me tell you something. आपको ऐसा फील होता होगा ना कि आज भाई बहुत मोटिवेशन है. रात को मैंने एक बढ़िया वीडियो देख लिया, कल से जिम जाना स्टार्ट करेंगे 1 तारीख से, मंडे से. बट आई गेट टू नो समथिंग दैट मोटिवेशन इज़ नॉट माई थिंग. मतलब मोटिवेशन 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 1 हफ्ता चलेगा, 1 महीना चलेगा, उसके बाद जब आपको प्रोग्रेस नहीं दिखेगा ना, क्योंकि फिटनेस इज़ नॉट समथिंग कि आप हर महीने हर दिन आप में एक चेंज आएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. इट टेक्स टाइम, टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, गुड डाइट, एवरीथिंग जो भी इसके साथ आता है. आई फिगर्ड आउट कि डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोटिवेशन. सो डिसिप्लिन का क्या है ना, ये मोटिवेशन से ऊपर क्यों है, क्योंकि मोटिवेशन जिसमें आपको पता है कि अपने रात को एक वीडियो देख लिया कि भाई आई नीड टू चेंज माई लाइफ, आई नीड टू चेंज माई पर्सपेक्टिव्स, माई पर्सनैलिटी. बट डिसिप्लिन आपको हेल्प करेगा हर दिन एक किक देने में, क्योंकि यू आर डिसिप्लिन्ड. आपको जाना ही है, आपको 6 बजे उठना ही है, जो मैं नहीं उठ पाता. 6 बजे उठोगे, आप एक रूटीन फॉलो करोगे. बट अगेन, आई एम नॉट समवन हु लव्स रूटीन. आई डोंट लाइक रूटीन टू बी वेरी स्पेसिफिक. बट इफ द रूटीन इज हेल्पिंग मी टू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग, देन आई लव इट. तो मैं अपने लिए रूटीन बनाता हूँ. जैसे मैंने उठ पाता हूँ सुबह, आई ट्राई टू गेट अप बाय 9-9:30, have my breakfast, then I edit some videos. अगर मतलब फ्री दिन है वो, अगर उस दिन कोई शूट वूट है नहीं तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ. Then I used to go to gym, proper training. उसके बाद घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर edit, and मैं सो जाता हूँ. It's the routine I follow. क्योंकि the routine is helping me to grow as a human being. That's why I'm loving it. तो डिसिप्लिन क्या करेगा ना, आपके लिए रूटीन बना के देगा. तो दैट्स वाई डिसिप्लिन इज़ फार मोर बेटर देन मोटिवेशन. जैसा मैंने आपको बताया कि आई वॉज रनिंग ए प्रोडक्शन हाउस. तो हमने बहुत सारे कोलाब्रेशंस करे, हमने बहुत सारे तगड़े काम किए. तो वो था मार्च तक, मतलब हम दोनों ने रन किया, उसके बाद मैं निकल गया था. तो उसके बाद आई डिड फुल टाइम फ्रीलांसिंग, बहुत सारे ई-कॉम शूट्स, कैफ़े शूट्स. एक बाइक के लिए रिसेंटली मैंने शूट किया था, एंड आई जॉइंड ए क्लोथिंग ब्रांड to shoot their content. That's how my filmmaking and freelancing journey it's going.
सो इट वॉज ए वेरी गुड प्रोडक्टिव ईयर। उसमें चैलेंजेस पता है क्या आते हैं इन सब में, आपको क्लाइंट को टाइम पे डिलीवर भी करना होता है और आपको साथ में ही अच्छा कंटेंट भी डिलीवर करना होता है, मतलब दोनों साथ में होना चाहिए, परफेक्शन भी होना चाहिए उसमें, क्वालिटी कंटेंट भी होना चाहिए। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसमें टाइम लगता है सोचने में कि हाउ द शूट इज़ गोइंग टू लुक लाइक, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनपुट कैसा होगा, आउटपुट कैसा निकलेगा, ये सब में मुझे टाइम लगता है थोड़ा सोचने में। अगेन ये प्रेशर भी होता है, गुड प्रेशर आई मीन, कि आपको टाइम पे डिलीवर करना होता है, क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना होता है। तो उसमें एक क्रिएटिव, अगेन द क्रिएटिव ब्लॉकेज थिंग मेरे इसमें थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन आई फाइंड इट चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग, एडवेंचरस। सो इन्हें लेसन्स पता है क्या होता है, अब जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो आपको कॉन्टेक्स्ट बनाना आना चाहिए। इसी माइंडसेट के साथ जाता हूँ कभी भी एक काम करने में कि जिसके साथ आप काम कर रहे हो मेक श्योर दैट वो लोग आपको फिर से बुलाएं काम के लिए, अच्छे से बात करो, आप कंटेंट अच्छे से शूट करो, जो भी कर रहे हो, एडिट करो, शूट करो, लेकिन अच्छे से करो ताकि वो लोग आपको फिर से बुलाएं काम के लिए। दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इफ़ यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग जस्ट लाइक मी। फ्रीलांसिंग में बस स्किल्स बिल्ड करना या फिर अपग्रेड करना ही नहीं होता है, इसमें आपको क्लाइंट बिल्ड करना भी एक आर्ट है, वो भी आपको सीखना होगा जैसे जैसे आप स्किल्स अपग्रेड कर रहे हो। सो अब आते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के ऊपर जो मैंने 2023 में सीखा था, अगस्त के आसपास मैंने सीखा था। एंड देन आई एम सो डीपली इन टू दिस पर्टिकुलर थिंग कि मुझे मज़ा आने लगा। तो इट्स पर्सनल फाइनेंस। एक साल पहले तो मुझे कोई आइडिया नहीं था भाई क्या होता है, क्या है, क्यों है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। समवन मेड मी अंडरस्टैंड व्हाट म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट, हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग माई मनी इन म्यूचुअल फंड्स, आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट ट्रेडिंग एंड ऑल। सो वन ऑफ माई फ्रेंड विकास, ही वॉज इनटू दिस स्टफ, यू नो, ट्रेडिंग एंड ऑल। सो हम दोनों बात करते थे इसके ऊपर कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। हमने कोर्स भी किया ट्रेडिंग पे, पर्सनल फाइनेंस पे। सो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कंपाउंडिंग कैसे होता है, क्या होता है। जब मेरे 1 साल पूरे हो गए थे इन्वेस्ट करते हुए, देन आई सॉ सम गुड रिटर्न्स जो कभी सेविंग्स पे या फिर एफडी पे कभी मुझे नहीं मिल सकता। आई गॉट रियली एक्साइटेड अबाउट द रिटर्न्स आई सॉ। मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने मेरे दोस्तों को भी बताया कि प्लीज़ ऐसा कुछ करो। ये छोटे छोटे विंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कुछ नया कर रहे हो ना। दे मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि आपने कुछ अच्छा किया है, उसका एक रिजल्ट आया है, छोटा रिजल्ट है लेकिन या इट्स नाइस, इट्स जस्ट गुड फॉर योर हार्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है मेरी लाइफ में, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, मुझे पसंद है डिसिप्लिन रहना। तो जो भी मैं काम करता था, वॉट एवर आई एम अर्निंग फ्रॉम दैट काम, आई यूज़ टू सेव 10% ऑफ इट। मैंने 10,000 रुपये कमाए कहीं से, तो आई मेड श्योर कि मैं 1,000 रुपये सेव कर दूँ वहाँ पे। म्यूचुअल फंड हो गया, कहीं भी नॉट सेविंग्स अकाउंट बट या डिड माई इन्वेस्टमेंट वैसे ही। सो मैं रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा था स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, और मैं बहुत ज़्यादा चेक नहीं करता हूँ कि इन्वेस्ट कर दिया तो 3-4 हफ्ते बाद या फिर 1 महीने बाद, 1-2 महीने बाद मैं वैसे देखता था। तो एक दिन मैंने देखा स्टॉक्स में कि दे वेंट -10%। जितने ही मैंने इन्वेस्ट किए थे तो इट वेंट ऑल इन माइनस, ऑल बिकेम रेड। रियली गॉट वरीड कि यार हार्ड अर्न्ड मनी है, जैसे वैसे तो कमाते हैं, और वो भी मैंने इन्वेस्ट करके खो दी। गया भाई, माइनस में गया तो ख़त्म है भाई, स्टॉक मार्केट गया, डूब गया, मेरे पैसे गए भाई। इट वॉज अ मैस। आई रियली गॉट वरीड अबाउट माई मनी। मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, तो जैसे वैसे मैंने खुद को समझाया कि भाई नहीं हो जाएगा, एंड दे डिड रियली वेल। अभी 1 साल में इट्स अराउंड 15%। अभी रिसेंटली कम हुआ है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा क्रैश में चल रहा था, लेकिन हाँ, दे आर गिविंग मी वेरी नाइस रिटर्न्स बोथ इन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स। तो पूरे साल में अभी तक मैंने वो जो फियर था मेरे अंदर, जो डर था मेरे अंदर, द फियर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, वो अभी कम हो गया मेरे अंदर से। अभी मुझे पता है वेयर आई एम इन्वेस्टिंग, व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग एंड व्हेन टू एग्जिट। ये सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कब आपको निकलना है किसी स्टॉक से, कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया है, और कब निकलना है। तो ये जब आप सीखोगे, जब आपको पता चलेगा इनके बारे में, तभी आप जानोगे कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। तो दैट्स हाउ माई पर्सनल फाइनेंस इज गोइंग ऑन। इट्स अमेजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर किसी को आज से स्टार्ट करना है, देखो पहली बात आप ऑलरेडी लेट हो, दूसरी बात परसों से बेस्ट है कल, कल से बेस्ट है आज। तो आज अभी से स्टार्ट कर दो इन्वेस्ट करना, चाहे 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, जितना भी कर सकते हो आप। हर महीने एक SIP तो डालो ही डालो। अगर आपको नॉलेज है थोड़ा स्टॉक्स के बारे में तो यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑल्सो, बट अभी इन सब में मत घुसो। जस्ट स्टार्ट
बिल्डिंग दैट डिसिप्लिन इनसाइड यू नो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर महीने 500, 1000, 2000 कुछ भी बट डालो। द कंपाउंड ग्रोथ इज़ रियल। मैंने देखा है मेरे दोस्तों के होते हुए, तो मुझे पता है इट्स रियल। आप डालो और अपने पर्सनल फाइनेंस को आप खुद सेव कर सकते हो। नो वन विल कम टू हेल्प यू फ्रॉम द फाइनेंसेस, यू नो। मनी इज़ समथिंग जो आपको ही डिसाइड करना होगा कि आप कैसे उसको इन्वेस्ट करोगे, कहाँ खर्च करोगे। तो यह पर्सनल फाइनेंस उस पर घुस जाओ, बिल्कुल इन्वेस्ट करो। कि ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 रुपये कमाए, 10% अपने सेव कर दिए, इन्वेस्ट कर दिया पूरा का पूरा, वैसा भी नहीं होगा। टफ टाइम्स आएंगे आपके लाइफ में हर दिन बस खुशियाँ नहीं होगी, दुख भी आएगा, गम भी आएगा, तो उनके लिए भी आपको पैसे सेव करने पड़ेंगे। अभी मैंने वो चेंज कर दिया, मेरा जो पूरा सिस्टम है। अपने 10,000 रुपये कमाए, 10% लो, 1,000 रुपये हुए, 500 आप सेव कर दो अपने सेविंग्स अकाउंट में, ताकि टफ टाइम में काम आए, और 500 आप SIP ले रख दो, वैसे भी आप कर सकते हो। तो दैट विल बी ए practical way of investing and saving money, you know. So that's it. That is my journey. That was my year 2024. बहुत कुछ घटा, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ सीखा, ग्रो किया मैंने एज ए पर्सन। मैंने मेरे पैसों को ग्रो होते हुए देखा। स्टार्टेड, जैसे मैंने आपको बताया, 75-76 किलो, 18% बॉडी फैट के साथ ये साल मैंने स्टार्ट किया था, और अभी मैं 72 के आसपास हूँ, एंड लेस बॉडी फैट परसेंटेज। द बॉडी फैट परसेंटेज विल बी अराउंड 10, 11, 12, वैसे मैक्स 12। साल अच्छा गया, ट्रैवल करा हमने बहुत कुछ। हम बिहार गए, हम मनाली गए, हम असम 2-3 बार चले गए, मेघालय गए, बहुत हमने क्रिकेट खेले इस साल, अगले साल और खेलेंगे। इम्प्रूव्ड एज ए ह्यूमन बीइंग, इम्प्रूव्ड एज ए पर्सन, बेटर देन द लास्ट ईयर। जाते जाते बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि नो मैटर वेयर आर यू राइट नाउ, कंसिस्टेंट एफर्ट्स कैन टेक यू वेरी फार। डिसिप्लिन के साथ एफर्ट्स लगाओगे ना तो बहुत दूर जाओगे, be it in finance, be it in physical fitness, be it in life, कहीं भी, it will take you very, very, very far. It was my biggest lesson from 2024. You are more than enough to motivate yourself. आप अपने लिए बहुत कुछ हो, मतलब you can do miracles. आप अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। आपको कोई नहीं चाहिए आपको मोटिवेट करने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए। तो हाँ जी भाई, यही था वीडियो 2024 के बारे में। अभी 2025 में भी हम अपने गोल्स के लिए जाएंगे भाई, बहुत कुछ करना है अगले साल भी, एंड आई विल ट्राई टू डॉक्यूमेंट एज मच एज आई कैन। अभी बॉडी रिकम्पोजिशन में जाएगी ताकि मैं थोड़ा बड़ा दिखूँ। क्या करेंगे देखेंगे, कैसे करेंगे हम देखेंगे। आप भी बताओ यार, आपने क्या सीखा 2024 से, आपका साल कैसा गया? प्लीज़ कमेंट डाउन। मतलब जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं तो वो तो कमेंट कर ही सकते हो भाई, क्या सीखा आपने, कैसा गया। तो सब्सक्राइब कर लियो मेरे चैनल को, बेल आइकन दबा देना, अच्छा रहेगा। आई विल मेक श्योर कि हम सब साथ में ग्रो करें, हमारी फिटनेस जर्नी सबकी अच्छी हो, फाइनेंस जर्नी सबकी अच्छी हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, दैट्स इट्स, मानस बोरा साइनिंग ऑफ, टेक केयर।